Welcome to Sagar Group of Institutions, Department of Electrical and Electronics Engineering. I am Professor Veer Singh Rajput. And in the previous video, I mean to say, what we are studying the course of network analysis, the subject code EX303. And in the previous video, I have explained you that these 5 units are the syllabus, and you can clearly see that this unit number 1, I have marked it with green color. This green color is resembling that this much part I have completed. But still, now today what we have to study, let me move ahead. Look at this portion, Introduction to Circuit Element RLC. Uh, Let me highlight it, this portion. Okay, the introduction to circuit element RLC and their characteristics means in the previous video we have studied active elements and we have studied passive elements. Okay, what are passive elements? Doing a revision, passive elements are resistance, inductance and the capacitance. And in the previous videos you all have known the formula of resistance, formula of inductance and the formula of capacitance. And what more you have studied in the previous video? In the previous video you have known about the formulas of resistance, inductance and capacitance. That is V equal to IR, voltage is equal to current into resistance होता है. V equal to LDI by dt इंडक्टर के केस में और 1 by C integration IDT कैपेसिटेंस के केस में. This formulas you have studied, and now active elements will be connected towards the passive elements. So let us see 30 minutes video this will be, or in this what we have to do, if you see what I am covering, DC circuit means the active element जो होता है, active element will be connected to passive element. I एक बार AC, this is AC, और एक बार DC, this is DC. DC means battery. This is the battery. This battery is will be connected to RLC and this AC will be connected to RLC. तो ये दो टाइप के एनालिसिस हो जाएंगी, एक DC सर्किट एनालिसिस, एक AC सर्किट एनालिसिस. And why I am teaching you both simultaneously in half screen? Because students, comparative analysis study is very necessary. If I will teach you first AC circuit analysis, then it will go 3 to 4 days, and then I will teach you DC circuit analysis, it will again go 3 to 4 days, and after that, and after at last you will be confused that where sometimes inductor and capacitors are showing different behaviors and sometimes different behaviors. So it is very much necessary that we should do a comparative study AC and DC in this video. Okay, this will make your mind very sharp for this portion. One more thing. So let's continue first. Now comparison we have to do. See this video. What we have to study actually? We have to study, students. I'm doing the partition. Say like this. This is the partition. AC circuit analysis. मतलब you see this is the waveform. This is the AC. Again, this is also AC source. This is also AC source given to resistance, inductance, and capacitance. In the second side, if you see, DC source is given to resistance, inductance, and capacitance. अब AC को देने से, ये AC सोर्स देने से रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा ये चेक करते हैं. AC को देने से इंडक्टर हाउ इट विल बिहेव ये चेक करते हैं, और AC को देने से ये कैपेसिटर किस हाउ इट विल बिहेव ये चेक करते हैं. लेट अस चेक. और ऐसे ही साइड बाय साइड वी विल चेक हियर आल्सो, है ना, बिकॉज वी नो दैट द नेचर ऑफ AC source is how. Let me show you and see these diagrams. What these diagrams is telling, this is the AC source. Okay, ये रहा AC source. I have done separately. AC source is represented mathematically how? B equal to A sin omega t. What does it means? Mathematically we are representing V equal to A sin omega t. मगर
एसी का एक्चुअल मीनिंग भी हमें मालूम होना चाहिए, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर एसी सोर्स लगा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट इज गोइंग लाइक दिस एंड देन करंट इज गोइंग लाइक दिस। मींस एक वायर में मैंने आपको बताया था करंट इज गोइंग लाइक दिस एंड अगेन कमिंग बैक लाइक दिस, अगेन दिस लाइक दिस एंड कमिंग बैक लाइक दिस। ऐसा एक सेकंड में 50 टाइम्स हो रहा है, अप डाउन, करंट डायरेक्शन इज रिवर्सिंग पॉजिटिव। तो हम एक जब क्लॉकवाइज मूव करेगा करंट, देन वी आर सेइंग इट एज पॉजिटिव, दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग एज पॉजिटिव। और जब करंट नेगेटिव साइड ऐसे मूव करेगा तो वी आर रिप्रेजेंटिंग एज नेगेटिव, सी सो वी आर प्लॉटिंग दिस वे। तो दिस साइनसॉइडल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी एक वायर में करंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर चल रहा है तो उसको एसी कहा जाएगा। ऑलराइट, दिस इज नॉट एक्चुअल एसी, है ना। ये बहुत लोगों को डाउट रहता है स्टूडेंट्स, और इस डाउट्स को आपको क्लियर करना है। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस ऑल। ओके, so I think you have understood the basic thing of AC. And what is DC? See, what is DC? Look at the right side till that the time I am repeating, erasing all these things. Okay, let me take a pen. What is DC? See, this is DC. DC कहीं फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। DC मतलब डायरेक्ट एक बार में करंट दिस इज गोइंग इनसाइड दिस, है ना। ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। अगर 5 एम्पियर करंट है तो 5 एम्पियर करंट है, दैट्स इट, ए कांस्टेंट। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक सफिशिएंटली दैट वोल्टेज ऑफ एन एसी इज रिप्रेजेंटेड विद A into sin omega t and voltage of DC will be represented as a constant। यहाँ मैंने एक वैल्यू ले ली है, सपोज 10, और इसको हम A भी बोल सकते हैं, एनी वैल्यू इट कैन बी। ओके, नाउ लेट अस नो दी फॉर्मूलास। ये फॉर्मूला मैंने सबके लिए कॉमनली लिख दिया है। वोल्टेज अगर मतलब ये है इस बात का कि अगर करंट रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R। इंडक्टर क्या हो जाएगा, L di by dt, दिस आई हैव टॉट यू इन माय प्रीवियस वीडियो। और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द करंट। मतलब जो भी करंट इसके अंदर जा रहा है उसका डायरेक्ट R इंटू आई होगा। जो भी करंट इंडक्टर में जा रहा है उस मतलब L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करंट हो जाएगा, वो यहाँ का वोल्टेज निकलेगा प्लस माइनस VL। और जो भी करंट यहाँ घुस रहा है कैपेसिटर में तो वो प्लस माइनस एक वोल्टेज डेवलप कर रहा है कैपेसिटर के अंदर VC। तो वो VC का कैसे निकलेगा, ये VC कैसे निकलेगा, 1 बाई सी करके, ये जो वैल्यू है C, इसकी 1 बाई सी करके इंटीग्रेशन ऑफ I dt, इस करंट का इंटीग्रेशन। अब ये करंट कहां से आ रहा है, अपने आप तो नहीं आ रहा, दिस करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, ये सोर्स है इसका। और ये सोर्स क्या है, दिस इज अ AC सोर्स। और AC क्या है, साइनसॉइडल, और मैथमेटिकली क्या है, sin ओमेगा t। तो यहाँ this we have already studied, actually this AC circuit analysis we have already studied in our basic electrical subject। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक केस वी हैव कंसीडर। आपको याद आ रहा होगा, रेजिस्टेंस का अलग से लिया था, इंडक्टर को अलग से पढ़ा था, कैपेसिटर को अलग से पढ़ा था। और उस वक्त हमने इंडक्टर और कैपेसिटर, ये इंडक्टर और कैपेसिटर को पढ़ने से मना कर दिया था, काय के केस में, इन द केस ऑफ डीसी, बिकॉज दिस कोर्स डीसी सर्किट एनालिसिस, ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर की डीसी सर्किट एनालिसिस है, दिस इज थर्ड सेमेस्टर कोर्स। ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, क्योंकि दिस देयर इज समथिंग डिफरेंट, है ना। और वो डिफरेंट क्या होने वाला है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। बट यू कैन गेस, सोचिए कि अगर इंडक्टर का वोल्टेज का फॉर्मूला L इंटू डी आई बाई डी टी है, तो सर डीसी के केस में वी हैव कांस्टेंट। अब वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है। तो अगर हम करंट निकालने के लिए हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे कहीं पर, तो देयर डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल बी जीरो। तो सर यहाँ पर जीरो का क्या मतलब होता है, अगर वोल्टेज डेवलप इज जीरो, दैट मींस उसका मतलब क्या हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू स्टडी नाउ ओनली। बट तो यहाँ पर ये जो डीसी ट्रांजिएंट एनालिसिस है, आई विल फोकस हियर मोर, आई विल फोकस हियर लेस। बट you have to make your mind clear that
behavior of this resistance, inductance and capacitance will be totally different for AC and DC. So, and the formulas will be always same. See, these are the formulas. This, on the basis of these formulas only I will do the analysis. So let us start my analysis. See, case number one I am taking. In the case number one, what I am doing, AC source is applied to resistance. All right. AC सोर्स को हमने रेजिस्टेंस को दिया और यहाँ साइड में देखिए DC सोर्स को अब रेजिस्टेंस में दिया। तो देखते हैं क्या होने क्या वाला है, दिस वी हैव टू स्टडी। ओके, तो जब AC सोर्स को दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि जब करंट AC सोर्स का करंट, जो भी करंट होगा, ये सोर्स है A sin ओमेगा t, जब इसके अंदर जाएगा करंट, तो हमने इस टर्मिनल पर देखो, इस टर्मिनल पे हमने क्या गिवन क्या है हमें बताइए। हमने इस और इस रेजिस्टेंस के इस दोनों एंड पर हमने गिवन क्या दिया है, सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है करंट। तो लेट अस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला इट्स रिटन हियर, द फॉर्मूला ऑफ करंट इज V R अपॉन T। व्हाट इज दिस V R? एक्चुअली अगर एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन जो भी हमने सोर्स गिवन किया वही तो यहाँ पर भी आ रहे। अगर दो रेजिस्टेंस गिवन होते तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज मतलब पर्टिकुलरली फॉर दिस रेजिस्टेंस ओनली। अगर ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है प्लस और ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है माइनस, दैट मींस ये जो वी आर फॉर्मूले में गिवन है दैट इज वी एस। तो वी आर इक्वल टू वी एस हो गया, क्यों? क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है ना। तो वी आर इक्वल टू वी एस, तो वो ये हो गया ये। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाय आर, सी वी अपॉन आर। तो v अपॉन r कर देंगे तो we will get a sin ओमेगा t अपॉन r। सही है कि नहीं? अब a sin ओमेगा t अपॉन r, जो कि a sin ओमेगा t क्या है, vr है, अपॉन r कर देंगे तो r की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कुछ वैल्यू ही आएगी। तो करंट विल आल्सो बी समथिंग a sin ओमेगा t। मतलब तो क्या मतलब हुआ कि अगर ये वेवफॉर्म देखो, अगर ये ग्रीन कलर की, अगर वोल्टेज आपका ग्रीन कलर का है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है and it is terminating here and then again it is reversing, तो ये तो हमने सोर्स लिया हुआ है, ग्रीन कलर का सोर्स हमने लिया हुआ है। तो करंट भी is following the same path, the same path. This you will understand in the second part when we will deal with the inductor. Okay, तो करंट वही पाथ फॉलो करता है जैसा सोर्स होता है। घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है, गधे का बच्चा घड़ा ही गधा होगा, है ना। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। इसी तरह सोर्स जो वोल्टेज है उसी जैसा सोर्स करंट भी होगा। लेट अस सी नाउ इन द सेकंड केस ऑफ डीसी सर्किट। यहां आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव अप्लाइड this DC source. See this, we have applied this okay, so we have applied this DC source. Wait a second. So on applying this DC source, what I am getting, see, I am getting this DC source। see student, this DC source I have applied here। then लगाई बैटरी है लेकिन नेचर क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट, सपोज दिस इज अ 10 वोल्ट सोर्स, सपोज दिस इज अ 10 वोल्ट सोर्स, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल of this source 10 volt। then what will happen, and current suppose it is 2 ampere, 2 ohms, है ना, वो resistance it is 2 ohms। तो we need to find the current। तो what will be the current, the current will be equal to 5 एम्पियर। लेकिन जैसा सोर्स है डायरेक्ट सोर्स, वैसे ही करंट का नेचर भी होगा डायरेक्ट। ओके, कुछ ऐसा नहीं कि एसी जैसा अपने आप करंट, आपने ऐसा करंट आप कह लो कि नहीं दिस इज लाइक दिस, ये गलत हो जाएगा। करंट इज नॉट लाइक दिस, करंट इज आल्सो डीसी। सो हियर, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now let us talk about case 2। this case is very interesting and case 3 is also very interesting। okay, so what is the case 2? see here, now again I am applying this AC source to this inductor and I am the same DC source I am applying to this inductor। मतलब देखो यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी दी है, यहाँ पर कौन है ना,
तो मेरे पास गिवन क्या है, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखो गिवन चीजों को लिख लेना चाहिए। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू मी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें गिवन है एक सोर्स जो कि है क्या, 10 वोल्ट्स का सोर्स हमें गिवन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन क्वांटिटी, और ये इंडक्टर भी आपको गिवन है। तो अब आपको करंट के बारे में पता करना होगा यहाँ, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इंडक्टर स्टूडेंट, दिस वी विल राइट। तो चलो ये यहाँ पे अपन देखते हैं। तो यहाँ देखें, अगर अपन सेम फॉर्मूला है गिवन, अब ये दोनों टर्मिनल पर हमने सोर्स अप्लाई किया है, यानी वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, यानी वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर कितना मिल रहा है, जो सोर्स है, और सोर्स वोल्टेज क्या हम दे रहे हैं, a sin ओमेगा टी। देन मतलब एक्चुअली में फॉर्मूला तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का हमको याद होता है LdI by dt, लेकिन ये तो हमें पता है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है करंट। तो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर करंट। तो हमने एक देखिए करंट का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v by l sin ओमेगा t। तो v को हमने a को हमने मतलब यहां निकाल दिया, a by l sin ओमेगा t। अब इसका इंटीग्रेशन इफ यू विल डू, देन यू विल get a by omega l cos omega t, एंड फाइनली यू विल गेट दिस। इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि आपका जो वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर है, ये देखिए वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर है, ये है सिंपल a sin ओमेगा t। यहां पे थोड़ा सा गौर करो, a sin ओमेगा t, और करंट क्या हो गया, करंट हो गया समथिंग वैल्यू sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। और रेजिस्टेंस के केस में मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। रेजिस्टेंस के केस में क्या हुआ था, जस्ट सी हियर आई हैव सेड वोल्टेज भी a sin ओमेगा t था और करंट भी sin ओमेगा t था। और अभी इंडक्टर के केस में क्या हो गया है, इंडक्टर के केस में यहां पर आ गया है मेरा माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब करंट 90 डिग्री पीछे है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंक्लूजन। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, अगर हमने sin ओमेगा t कहा है, यानी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन द करंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 90 डिग्री लाइक दिस। This all we have already studied in our AC circuit analysis of first year course, but little bit in the starting I have to tell in the network analysis portion also, and comparatively I will telling you DC, okay. And why we are using the same formula as a student, we are not using something different formulas. So one more chart I am getting here, see, in the if current is this, then the voltage is leading, or if the voltage is this, then the current is lagging. So see, voltage is at 0, current is at minus 90, current is at minus 90. That means current is lagging the voltage. Pure inductor, in case of pure inductor, current is lagging behind the voltage by 90 degree. Now let us study this portion of DC circuit analysis, which is very very important for us in this semester, and it is very very important for the GATE exams also. So the same formula, see students, the same formula we have to apply, okay. V equal to LdI by dt, but you all know that this V is already given to us. What is this V? This V is this 10. Remember, this VL is 10. Why? Because this is a 10 volt battery which we have applied on this inductor. So this V is this 10. And what is the nature of this 10? This 10 is a constant. And I need to find the current. So what is the formula for current? डेरिवेशन से इसी को आप मैथमेटिक्स में V dt, इसको मल्टीप्लाई करो dt को, इसको L को करो डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा, और इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पॉज द वीडियो और अपने दिमाग को तेज करो इस चीज के लिए, और अपने आप ये चीज को यू विल गेस। तो व्हाट आई एम गेटिंग, करंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर मान लो इंटीग्रेशन में, अगर फिलहाल तो मेरे को ये 10 वैल्यू गिवन है, so if I will put this 10, then after integrating what I will get 1 by L into 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 10t आ जाएगा यहाँ पर, 10 into t, this what I will get. But let me tell you what we are studying actually. Some notes I have given to you here. Actually इसमें हमें ये क्या करना है वो देखो ध्यान से। There is a finite value in steady state which will be calculated by the formula। मतलब एक फॉर्मूला लगा के हमने एक फाइनाइट वैल्यू निकाल ली ऐसे कुछ, बट इनिशियली ये है सब कुछ, दिस यू हैव मे नोट डाउन,
but initially for a very small time there will be zero current in the inductor and this is known as DC transient analysis. इसका मतलब अभी आपको अभी सेकंड स्लाइड पे समझ में आएगा इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। सो इन नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में while studying passive elements there is a double nature of inductor, one for short time mathematically defined as t tends to 0 and other is after a long time mathematically defined as t tends to infinity। इस बात का मतलब बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, इस बात का मतलब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कभी भी, याद रखिए ये एक स्विच है, मान लीजिए आप एक कमरे में गए, दिस इज अ रूम, एक रूम है, उस रूम में दिस इज अ रूम, एक कमरे में आप गए सपोज और उस कमरे में एक ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट अगर जल रही है ऑटोमेटिकली, वो जल रही है अगर ट्यूबलाइट, तो अगर वो जल रही है तो इसका मतलब क्या है, सर्किट ये वाला कहलाएगा। मतलब अगर मैं इस इंडक्टर को 1 मिनट के लिए एक ट्यूबलाइट मान लूं और वो जलती हुई मिली आपको कमरे में, इसका मतलब बहुत देर से जल रही है, यानी जो स्विच है घर का वो क्लोज होगा, क्लोज स्विच होगा, यानी करंट पास हो रहा होगा तभी तो वो जल रही थी। तो ये तो एक बात हो गई। और अगर आप उस कमरे में गए और आपको वो लाइट बंद दिखी और अब आप उस लाइट को ऑन करने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द लाइट, तो आप अपने सामने उस स्विच को क्लोज करोगे। अभी ये स्विच देखो इस तरह से खुला हुआ है और अब आप इसको स्विच को क्लोज करोगे। तो ये दो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एसी सर्किट एनालिसिस में इतना ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट डीसी सर्किट एनालिसिस में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज थिंग्स लाइक दिस। और क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जो आपको गिवन होंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हाँ, तो अब इसमें करना क्या है हमें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। ओके, so I have deleted, erased this color. Again, I am taking the pen. So see, the diagram here is also erased actually. So what I was telling, कि अगर suddenly if some switch is getting closed, see this suddenly, what is the meaning of this suddenly? Suddenly यानी कि आप गए और आपने इस स्विच को बंद किया और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर यहाँ पे भी लिखा रह सकता है फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। इससे क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि बहुत पहले से ये स्विच बंद था। तो अब इनको हम मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, इन मैथमेटिक्स सडनली आपने कोई चीज अपनी आंखों के सामने करी, this is represented as at t equal to 0, this is represented as at t equal to 0, and if from a long time the switch is closed, that means it is said t tends to, see this is t tends to infinity, t equal to time t tends to infinity. Let me rub this again. Okay, so let us continue. What is the meaning of this? Now see students, all these slides I want in front of me now here. See, try to understand this concept very very carefully. What I mean to say, suppose if this in this inductor, इस इंडक्टर में अगर आपने जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो ये जो इंडक्टर पे एकदम से इस वोल्टेज का प्लस और माइनस आएगा। तो जैसे ही इस इंडक्टर पे वोल्टेज का प्लस आएगा और माइनस आएगा, ये इंडक्टर अपनी जगह पे ही है, बट फॉर अ शॉर्ट माइंड, अदृश्यता से समझो इसको कि बिल्कुल ये अदृश्य बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि फॉर अ शॉर्ट टाइम इट विल बी नॉट प्रेजेंट, मतलब ये अपनी जगह से हट जाएगा। तो अगर ये हट जाएगा तो क्या करंट यहां से फ्लो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। द सर्किट विल बी टर्म्ड एज ओपन सर्किट। दिस यू हैव टू केयरफुली लर्न एंड स्टडी। अब इसका रीजन क्या है, आई विल टेल यू जस्ट इन अ व्हाइल ओनली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे ही आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 बजे अगर आपने इस लैंप को ऑन किया है और आपसे बोले 10 बजे आपने एग्जैक्ट किया है इसको स्विच को बंद, तो बताओ 10 बज के 1 सेकंड पर, जीरो कितना कम टाइम के लिए, 10 बज के 1 सेकंड पर बताओ लैंप में कितना करंट है, तो आप बोलोगे दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम,
तो हम बोलते हैं जैसे स्विच को बंद किया तो हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं दिस इज टाइम इज नोन एज t इक्वल टू 0, क्योंकि वो मैंने अभी अभी तुरंत बंद किया है। तो दिस इंडक्टर विल बी ओपन सर्किटेड, दैट मींस देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी जीरो करंट एट t इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द करंट I जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया? जब आपने स्विच बंद किया होगा तब। तो सीधे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ और इस क्वेश्चन को देखो। ये दो क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो, ये दो क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है, अभी आप पहला क्वेश्चन बस देखिए, ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द करंट I जीरो और फाइंड द करंट I इंफिनिटी। अब ये I जीरो प्लस क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। I जीरो, फाइंड द करंट I जीरो एंड द फाइंड द करंट I इंफिनिटी को ये चेक करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, इफ स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, मतलब हम अभी इस सर्किट की बात कर रहे हैं, ये सर्किट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसकी बात करेंगे। यानी कि अगर स्विच अभी हमने बंद किया, आप गए और आपने स्विच को बंद किया तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे तो रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आता, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो इंडक्टर है ना, ये अपनी जगह से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कितनी देर के लिए ओपन हो जाएगा? फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उसी टाइम को हम बोलते हैं t इक्वल टू 0। तो अगर t इक्वल टू 0 पे हमसे कोई पूछ रहा है, t इक्वल टू 0 पे हमसे कोई करंट I0 पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर जब ये जगह पे है ही नहीं तो ये सर्किट कैसा हो गया? ओपन हो गया ना। 15 वोल्ट है, बैटरी कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन अब ये जो लाइन है इंडक्टर, ये है ही नहीं, तो करंट नीचे से ऐसे पास होगा ही नहीं। तो अगर करंट पास नहीं होगा तो I0 करंट जो होगा, I0 करंट जो होगा वो होगा क्या? जीरो होगा। ये बहुत ही खतरनाक बात होती है कई बार बच्चों को समझने में, लेकिन ये आ जाएगी समझ में। अभी आप ऊपर आ जाओ, वापस यहाँ आ जाओ। तो t इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ गए हैं, और t इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब आपको समझना है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ये ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये बहुत देर से बंद है, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा बच्चों? इट विल बी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब हो गया कि जो भी करंट है वो यहां से ऐसे पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो, इन दोनों केसेस को मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ये ओपन हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद, ये क्लोज ही तो है ना, जब जब भी कभी पहली बार कोई लैंप या लाइट ऑन होती होगी तो वो थोड़ी देर के लिए तो क्लोज होती ही हो, मतलब पहले कोई भी चीज पहली बार ही होती है ना, तो पहली बार तो ये क्लोज जब हुई होगी फर्स्ट टाइम, then it has behaved as open circuit and after some time it has behaved as short circuit। तो ओपन सर्किट हुआ पहले सडनली और शॉर्ट सर्किट हुआ फिर। अब आप जिस वक्त कमरे में गए, आप जिस वक्त रूम में गए, मान लो वो पहले से स्विच क्लोज है, तो वो आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा, या आपको शॉर्ट सर्किट दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने सामने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के एक्सपेरिमेंट में व्हाट यू आर सीइंग? यू आर सीइंग दैट फर्स्ट इट इज ओपन सर्किट एंड देन इट इज शॉर्ट सर्किट। और ओपन और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब ओपन होता है, शॉर्ट का मतलब क्लोज होता है, क्लोज। शॉर्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? क्लोज होगा। ओके, तो ओपन का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और शॉर्ट का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओपन और शॉर्ट की जो बात है कि ओपन और शॉर्ट के केस में कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें टेक्निकली जाननी होगी। दिस आई विल बी कवरिंग इन द कंक्लूजन वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी इस बात को चलने देते हैं। शॉर्ट, अब इस सर्किट को ही देखो, कहां गया मेरा पेन? ओके, इसी सर्किट को यू हैव टू सी। इन दिस सर्किट आपने अभी सब कुछ अंदाजा, यू हैव लगा, आपने अंदाजा लगा लिया है t इक्वल टू 0 पर। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, लेट मी रब इट, let me erase all this, ये this I need to erase। ओके, अब ऐसे समझिए कि नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, है ना, अब स्विच क्लोज है, तो स्विच अब क्लोज है मान लीजिए, तो क्लोज है तो इट विल बिहेव लाइक दिस। लेट मी टेक अ पेन अगेन। ओके, द स्विच विल बिहेव लाइक दिस। ये है स्विच, अब की बार क्लोज है ये, तो क्लोज है अगर, तो ये बहुत देर से, अगर अब तो क्लोज हो गया ना, है ना, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, यानी कि अब
अब मैं इस क्वेश्चन पे तो मैं जाने नहीं चाह रहा था, वैसे अभी भी नहीं जा रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन को भूल जाइए, इसी क्वेश्चन को देखिए। इफ स्विच इज क्लोज, दिस स्विच इज क्लोज, देन व्हाट विल हैपन, द शुरुआत में आई जीरो के लिए हमने करंट निकाल लिया जीरो, आंसर आ गया हमारा आई जीरो इक्वल टू जीरो। और आई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, आई इंफिनिटी मतलब दिस स्विच इज नाउ क्लोज, ओके, and then it is closed for a long time. That means this circuit is open circuited and after some time it is short circuit. अगर ये short circuit हो गया मतलब इसने पहले जादू की तरह पहले ओपन रहा और फिर क्लोज करके क्या कर दिया, करंट को अलाउ कर दिया पास करने के लिए। और अगर करंट अलाउ हो जाएगा तो अब बताओ ये सर्किट में क्या क्या है, ये तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये सिंपल एक लाइन है, गायब हो गया। अब क्या क्या रह गया सर्किट में, 15 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टेंस। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमें जब ये जो इनिशियल कंडीशन, इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस, ये भी अभी आपको समझ में आएगा। ये जब हम आई जीरो और आई इंफिनिटी पढ़ते हैं तब स्टूडेंट्स हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर रहते हैं और गायब हो जाते हैं, रहते हैं और गायब हो जाते हैं। टी इक्वल टू जीरो पर ये प्रेजेंट नहीं है, ओपन है, और टी इक्वल टू जीरो पे ये क्लोज है, शॉर्ट है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/1 यानी कि 15 एम्पियर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर क्या है आई जीरो का, तो यू विल से मी सर आई जीरो इक्वल टू जीरो और आई इंफिनिटी इक्वल टू 15 एम्पियर। वेरी गुड, अगर आप ये बता पा रहे हैं तो। Now see the second question. See this question. This question we have to study now. This is the second question. अब आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप बताइए मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो स्टूडेंट्स, जो दिखाई देता है ना वही हमें समझना होगा, हम अपने आप से अंदाजे नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। आपको देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा था पहले वाले क्वेश्चन में कि स्विच ओपन है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे क्वेश्चन में बोल भी रहा है फाइंड द करंट इफ स्विच इज क्लोज्ड, आपके सामने है ना, एट टी इक्वल टू जीरो। यहां पर आपके सामने क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट इफ स्विच इज क्लोज्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत पहले से अगर ये बंद है, तो बताओ भैया क्या समझ में आ रहा है तुमको, तो बताइए